Jai Hind everyone, welcome to the online class of Shri Ram Public School, myself Pragati Pandey. Dear students, in the class we have started chapter 4 climate and now we are going with the topic which we have to discuss for today. Okay, so as you know that the chapter which was going on was climate. So as you know that the climate and weather, there were two terms. The climate is the condition of atmosphere which rest for 30 to 40 hours in that particular time. मतलब 30 से 40 साल तक अगर किसी भी एरिया का वेदर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एक ही जैसा, दैट इज़ द क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया. बट इफ़ वी डिस्कस द टेम्परेचर चेंजेस on everyday basis, on a daily basis or on a weekly basis, the changes which is observed in the atmosphere, they are referred to as the weather. weather मतलब मौसम जो डेली के बेसिस पर चेंज होता रहता है. जैसे आज बारिश हो गई, कल धूप हो गई, परसों फॉग हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ वेदर. बट क्लाइमेट रेस्ट फॉर 30 to 40 years. Okay. So these things we have discussed in the class. Then after we were discussing about the factors which affect the climate of an area. So we have discussed the 6 factors which were responsible for the climate changes. In that we have discussed about the altitude, the latitude, then after the pressure. We have also discussed the ocean current, then after relief features and continentality, that means the distance from the sea. All these things we have discussed. Then after we have also discussed about the Coriolis force and I have explained this Coriolis force in your class. So now we will move to the next topic and we will discuss the next topic of the chapter, that is, so students, these are climatic control factors which are responsible for affecting the climate, that was latitude, altitude, pressure, wind system, distance from the sea, ocean current and relief features. All these things we have discussed. Then after we were discussing about the Coriolis force, as you can see this is on this page only. So we have discussed all these things. Now we will start from the next topic, the Indian monsoon. So you know that I have already told you that the monsoon is a type of wind, is a type of climate, is a type of weather system which is present between the June to September in our country. What happens? It starts from the south of our country and moves toward the north side. So this is a type of wind which blow during the June to September time and they carry a lot of water with them and a rainfall is observed in our country. We have also discussed about the two things, that is tropical and subtropical condition. In that we have also seen the tropical region is below the Tropic of Cancer and above the Tropic of Cancer, that is subtropical region. We have discussed those things in our class only. So we are going to start from the Indian monsoon. The climate of India is strongly influenced by monsoon wind. Yes, the climate of India is influenced, is disturbed or is observed every year during the June to September. There is a type of wind which blows in our country every year, that is monsoon wind. The sailors who came to India in historic time were one of the first to have noticed the phenomena of the monsoon. Obviously, when there was no time, there was no, they are not knowing how to get the time, they are not aware of the distance, they are not aware of the directions. Then what they use? They use the type of wind. They use the wind to get the seasonal variation and to know about the weather condition and to know about the area. होता क्या था पहले ज़माने में, जब हमारे देश में या हमारे कंट्री में, वर्ल्ड वाइड हमारे एरिया में, जब लोगों के पास दिशाएं जानने के लिए कोई उपकरण नहीं थे या उनको कब कौन सी हवाएं बहती हैं, सीजन्स के बारे में तो पता था, लेकिन ईयर्स जो मंथ है, किस मंथ में क्या होता है, ये चीज़ें उनको जब नहीं आइडिया था,
उस समय भी उनको ये था कि इस समय मॉनसून विंड चल रही है, मतलब जून से सितंबर का समय चल रहा होगा। तो होता क्या था, जो नाविक होते हैं या जो ट्रेड करने के लिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो जब इंडिया में सेलर्स आए बहुत पहले के टाइम में, हिस्टोरिक टाइम्स के समय में, तो उन्होंने सबसे पहले ये विंड को ऑब्जर्व किया। होता क्या है, विंड जो है अर्थ सरफेस पे लैंड एरिया में कम ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन जब ओशन एरिया की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे अच्छा खासा ऑब्जर्व किया जाता है विंड की डायरेक्शन। तो होता क्या है, जो मॉनसून विंड है वो इंडिया के तरफ बहती हुई आती है, तो सबसे पहले उनको इसको नोटिस किए हैं सेलर्स ने, इनको नोटिस किया हुआ है बहुत पहले के सेलर्स ने जो यहाँ पर ट्रेड के लिए आते थे। दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम एज दे केम बाय सेलिंग शिप एट द मर्सी ऑफ द विंड। होता क्या है, ये जो सेलर्स हैं, जब समुद्र में जहाज है तो उस पर विंड का बहुत इफेक्ट पड़ता है। मतलब अगर कोई समुद्र में जहाज जा रही है और जिस तरफ की विंड होगी उस तरफ वो ईजिली जा पाएगी, जहाज बह पाएगी। दूसरे साइड उसको दिक्कत होगी, क्यों? क्योंकि विंड क्या कर रहा है, उसकी स्पीड को बढ़ा रहा है। जिस तरफ वो मूव कर रही है, अगर उसी साइड की विंड है तो उसकी स्पीड को बढ़ाएगा। लेकिन अगर ऑपोजिट है तो जो जहाज है उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और हवा बहा करके पीछे ले जाएगी। तो जिस साइड विंड होती है, अगर उस साइड मूव करना है तो विंड पूरी तरीके से हेल्प करती है मूवमेंट में, ठीक। सो जो सेलर्स थे उनको इन विंड से काफ़ी फ़ायदा मिला, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो समुद्र में जहाज होती है वो हवाओं की वजह से जाना कहीं और है, चली कहीं और जाती है, तो इसका भी इफेक्ट होता है। ओके, तो हुआ क्या कि ये विंड का जो रिवर्सल है, विंड के जो मूवमेंट है या कॉरियोलिस फोर्स आप कह सकते हो, इन सब के वजह से जो सेलर्स थे वो यहाँ पर आ पाए। द अरब्स हु हैड ऑल्सो कम टू इंडिया एज ट्रेडर्स, जो अरब के लोग थे, जो सऊदी अरेबिया हुआ, अरब कंट्रीज़ हो गई, वहाँ के जो लोग थे वो भी हमारे यहाँ हमारी कंट्री में आए थे ट्रेड के लिए, चीज़ों के ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए आए थे। उन्होंने ही यहाँ पर सीज़न के रिवर्सल को ऑब्जर्व किया। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, जो सीज़न चेंज होते हैं, सीजनल वेरिएशन होता है, उनको ऑब्जर्व किया और इन्होंने ये देखा कि ये सीजनल वेरिएशन हो रहा है विंड के वजह से। कौन सी विंड? दैट इज़ मॉनसून विंड के वजह से ही ये सीज़न में वेरिएशन आ रहा है। गर्मी से बरसात का मौसम आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस मॉनसून विंड। अगर ये मॉनसून विंड ना होती तो शायद बरसात हमारे यहाँ इतनी अच्छी से नहीं होती। अगर आप ही सोच लीजिए, जो वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट, अगर इसकी हाइट ज़्यादा होती, सपोज if the height of the mountain of western and eastern ghat was higher likewise it is today, तो हो सकता है मॉनसून विंड ईजिली इंडिया में नहीं आ पाती क्योंकि हाइट ज़्यादा है। इवन आपको मैंने ये भी बताया था कि जो ईस्टर्न घाट है दैट इज़ क्वाइट लोअर, क्वाइट लेसर देन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के पहाड़ ऊंचे हैं और ईस्टर्न घाट के पहाड़ नीचे, हमने ये डिस्कस किया होता क्लास में। तो होता क्या है, नीचे की तरफ से जो हवाएं हैं वो मूव करती हैं। अब सोचिए अगर ईस्टर्न घाट बहुत ज़्यादा ऊंचा होता तो क्या होता, या वेस्टर्न घाट दोनों ही बहुत ज़्यादा ऊंचा होता, तो शायद विंड सिस्टम हमारे यहाँ इतने अच्छे से ना आ पाता। तो कहने का मतलब है कि जो इंडिया का मॉनसून है वो सिर्फ और सिर्फ विंड सिस्टम के रिवर्सल से ही फॉर्म हुआ है, ठीक। और जो इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था अरब ट्रेडर्स ने। और अगर हम बात करें तो अरब ट्रेडर्स जो थे इन्होंने एक वर्ड देखा, एक वर्ड था दैट इज़ मौसम। मौसम एक वर्ड है, इसी से इन्होंने मौसम को नाम दिया, ठीक। अगर हम बात करें तो इफ़ यू विल सी दिस मैप, अगर आप इस मैप को देखेंगे, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में एटमॉस्फेरिक कंडीशन इंडिया के सबकॉन्टिनेंट में कैसा होता है। अगर आप देखोगे इंडिया, अगर आपको ईजिली दिख रहा होगा इंडिया, तो आप ऑब्जर्व करेंगे। So if you will see India, you can see that Bay of Bengal is observing, it is present over here, and Arabian Sea is there. You can easily observe. So if you will see the movement of or the atmospheric conditions, so this is Indian Ocean. You can see here it is Indian Ocean, and if you will see
the movement of atmospheric condition. This is the one arrow is surface wind, that is it is present on the surface, and if you will see the two lines were showing the subtropical westerly jet stream. So here this is two line and here it is two line, here you can also see that there are two lines, that means they are subtropical westerly jet stream. सब ट्रॉपिकल मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके ऊपर जो विंड आपको दिख रही है, जो जेट स्ट्रीम आपको दिख रही हैं, दे आर वेस्टर्ली सब ट्रॉपिकल जोन में दिख रही हैं. अगर हम बात करें तो सरफेस विंड है, तो सरफेस विंड कहाँ से किधर आ रही हैं, आप अगर देखोगे तो सरफेस विंड इधर से यहाँ आ रही हैं इस साइड, मतलब जो इंडिया का सरफेस है वहाँ से समुद्र की तरफ सरफेस की विंड आ रही है. ठीक, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ देखेंगे सरफेस विंड जो ओशन करंट की वजह से जो विंड बन रही है वो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व हो रही है. एंड इफ वी सी द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेयर का कंडीशन जनवरी में कैसा होता है, तो हवाएं जो होती हैं वो सब ट्रॉपिकल जोन में लैंड के तरफ से ओशन की तरफ हवाओं का मूवमेंट होता है. हमने बार बार ये चीज़ डिस्कस किया हुआ है, हमने बार बार ये बताया है कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है उसमें ये इक्वेटर है और इक्वेटर के नीचे दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ. तो होता क्या है, नॉर्थ की हवाएं इस साइड बह रही हैं और साउथ की हवाएं इस साइड बह रही हैं. तो ये ऊपर से इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो ये आपस में टकराएंगे. इधर से ये आएगा, इधर से ये जा रहा है, तो ये आपस में टकराएंगे और वहीं पर कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है. सो एटमॉस्फेरिक कंडीशन आप देख रहे हैं जनवरी में कुछ इस तरीके का है. लेकिन अगर हम बात करें तो आप जून में जब मॉनसून आ जाता है, जब मॉनसून आ जाता है उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो होता क्या है, तब हवाओं का मूवमेंट जो होता है, तब जो हवाएं होती हैं इनका मूवमेंट अरब सागर से होते हुए या अगर हम बात करें इंडियन ओशन से होते हुए, बे ऑफ बंगाल से होते हुए कुछ इस तरीके से जून में हवाएं बहते हुए आती हैं. तो ये क्या करती हैं, अपने साथ ढेर सारा बारिश लेकर के आती हैं. ठीक, अपने साथ ढेर सारा बारिश लेकर के आती हैं. यहाँ से केरला देखो, इंडियन ओशन से यहाँ से केरला में एंटर करेगा. आप देख रहे होंगे दिस इज़ द एरो जहाँ पर केरला में मानसून विंड एंटर करती है. और हम बात करते हैं कि जून में सबसे पहले मानसून दस्तक देती है. मानसूनी हवाएं जो होती हैं वो सबसे पहले जून में ही दस्तक देती हैं. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है जनवरी में क्या था, जनवरी में हवाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही हैं सरफेस विंड. लेकिन जब आप यहाँ पर देखेंगे तो साउथ से नॉर्थ की तरफ हवाएं जा रही हैं. तो यहाँ पर आप मूवमेंट देखो, सीधा ऑपोजिट मूवमेंट हो जा रहा है because of monsoon wind, because of this monsoon wind. The monsoon are experienced in tropical area roughly between 20 north and 20 south. tropical area में बार बार मैं बता रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है. सपोज दिस इज आवर कंट्री, आपको पता है हमारी कंट्री को लगभग 2 इक्वल पार्ट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करती है. तो अगर हम बात करें तो ये नीचे का जो एरिया है दैट इज ट्रॉपिकल और ये जो ऊपर का एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का एरिया दैट इज सब ट्रॉपिकल. तो बार बार हम ये चीज़ बता रहे हैं कि जो धरती के हमारे इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो बीचों बीच से पास हो रही है 23 डिग्री नॉर्थ से जो पास हो रही है, उसके ऊपर का जो सब ट्रॉपिकल और उसके नीचे का जो ट्रॉपिकल एरिया है. इफ वी विल डिस्कस अबाउट द tropical zone, the tropical zone experience roughly between 20 degree north and 20 degree south. 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ के बीच का जो एरिया है मॉनसून वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किया जाता है, रफली एक्सपीरियंस किया जाता है. सॉरी, दैट इज़ रफली एक्सपीरियंस किया जाता है. मतलब जो जोन है 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ का, 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ का अगर हम बात करें तो वहाँ पर सबसे कम मानसून पाया जाता है. अब अर्थ सरफेस पे 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ आप देखेंगे दैट इज़ द लोअर जोन बिटवीन नियर द इक्वेटर जोन. ओके, सो टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ मानसून द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट. टू अंडरस्टैंड द मानसून वी हैव टू डिस्कस द फॉलोइंग फैक्ट्स. फर्स्ट वन इज द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट लो प्रेशर
on the land mass of India while the sea around experience comparatively high pressure। होता क्या है कि आपको पता है कि समुद्र का पानी इवेपोरेट होता है गर्मियों के समय में। इवन जो धरती पर जो लैंड एरिया है वहाँ पर भी जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पर भी हीटिंग होता है, वाटर का हीटिंग होता है और रात के समय कूलिंग होता है। तो होता क्या है, ये जो हीटिंग और कूलिंग है लैंड का और वाटर का, तो ये क्या करता है, ये लो प्रेशर एरिया हो, लो प्रेशर कंडीशन होती है इंडिया के लैंड मास पे। इंडिया के लैंड मास पे भी हीट हो रहा है और वाटर भी हीट हो रहा है, तो जो लैंड मास है वो हीट होता है, लेकिन हो क्या करता है, वो लो प्रेशर जनरेट करता है। और वहीं पर जो समुद्र है, समुद्र वहाँ पे ज़्यादा, एक तो समुद्र इक्वेटर के नज़दीक है और वहाँ पर टेम्परेचर हाई भी है, तो जब वहाँ टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट होगा और लैंड पे लो प्रेशर बेल्ट होगा। तो आपको ये चीज़ पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीज़ें जाती, मैंने बार बार बताया हुआ है। तो होता क्या, मूवमेंट होता है ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। द शिफ्ट ऑफ द पोजिशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ कह रहा है कि समर में जो ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है इनकी शिफ्टिंग होती है ओवर द गंगा प्लेन। दिस इज द इक्वेटोरियल थ्रो नॉर्मली पोजिशन अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इट इज ऑल्सो नोन एज मानसून थ्रो ड्यूरिंग द मानसून सीजन। कह रहा है कि द शिफ्ट ऑफ द पोजिशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन समर ओवर गंगा प्लेन, दिस इज द इक्वेटोरियल थ्रो नॉर्मल positioned and 5 degree north of the equator. It is also known as monsoon trough during monsoon season। जो आपका ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है समर में क्या होता है, यहाँ पर गंगा प्लेन के एरिया में यहाँ पर कन्वर्जेंस होता है। कन्वर्जेंस का मतलब हो गया कि आपको पता है कि जो गंगा वाला एरिया है, गंगा का जो जोन है, यहाँ पर आपको दिख रहा है हिमालय। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हवाएं कन्वर्ज कर जाती हैं, इकट्ठा होने लगती हैं। इकट्ठा होने का आप कह सकते हो कि एक तो अरेबियन सी की तरफ से हवाएं चली और एक आपकी बे ऑफ बंगाल सेंटर की। तो जो गंगा का प्लेन है, यानी जो उत्तर भारत का जो मैदान है, जहाँ जैसे यूपी का जो एरिया, हरियाणा का जो एरिया है, ये एरिया क्या है, ये गंगा का प्लेन एरिया, जहाँ से गंगा पास होती है उसके अगल बगल का जो एरिया, दैट इज़ गंगा का प्लेन। तो उत्तर प्रदेश से होते हुए गंगा जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों तरफ की हवाएं आकर के कन्वर्ज कर जाती है और यहाँ पर बारिश, अच्छी खासी बारिश देती हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें तो चौथा फैक्टर है द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया east of Madagascar, approximately at 20 degrees south over the Indian Ocean. The intensity and position of this high pressure area affect the Indian monsoon। होता क्या है कि presence of high pressure area, जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर के ईस्ट में हाई प्रेशर एरिया हो जाता है। जैसे समुद्र का एरिया जो है दैट इज़ हाई प्रेशर एरिया। तो होता क्या है कि 20 डिग्री साउथ जो है, जहाँ इंडियन ओशन प्रेजेंट है, अगर हम वहाँ की बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है, जो कि मेडागास्कर के ईस्ट में एरिया है। यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर होने के वजह से ये एरिया पूरी तरीके से मानसून को इफ़ेक्ट करती है। जैसे अगर आप देखोगे, इफ़ यू विल सी, ये है धरती आपकी, सपोज दिस इज यस दिस इज़ योर अर्थ। ठीक, यहाँ पर ये इक्वेटर है, आपको पता है ये ज़ीरो है। तो अगर 20 डिग्री नॉर्थ यहाँ होगा, 20 डिग्री नॉर्थ यहाँ है, तो 20 साउथ यहाँ होगा इधर। तो ये 20 डिग्री साउथ जो है कुछ यहाँ पर, यहाँ मेडागास्कर है, मेडागास्कर के ईस्ट, दिस इज़ ईस्ट, इस साइड, तो मेडागास्कर के इस साइड कुछ यहाँ पर होगा। तो ये क्या करती है, मॉनसून विंड हमारे इंडिया में कुछ इस तरीके से आ रही हैं, एंटर कर रही हैं। तो ये यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट होने की वजह से हवाएं कुछ यहाँ हाई था, तो यहाँ एकदम से हाई है, यहाँ नीचे जो है एकदम से हाई है, इक्वेटर के पास हाई प्रेशर बेल्ट है और ऊपर इंडिया है, इंडिया का लैंड एरिया जो है वो लो प्रेशर बेल्ट है। तो यहाँ से ये प्रेशर देंगे कि हवाएं और तेज़ी से ऊपर जाएं इंडिया के तरफ, तो हाई टू लो का तरफ हवाएं जाएंगी। तो इसके वजह से ये मॉनसून विंड को पूरी तरीके से अफेक्ट करता है। ओके,
अगर हम बात करें द फोर्थ कंडीशन इज द तिब्बतन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर। गर्मियों में क्या होता है कि तिब्बतन प्लेट्यू जो है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इससे होता क्या है कि जो वर्टिकल एयर करंट है, और होता क्या है जैसे मान लीजिए जो बहुत ज़्यादा भले तिब्बत का पठार गर्म होने लगता है लेकिन लो प्रेशर एरिया बन जाता है। क्यों? क्योंकि ठंडा भी बहुत होता है और वहाँ पर एक तो माउंटेन रीजन है, तो वहाँ पर अगर जनरेट भी होगा, हाई प्रेशर जनरेट भी होना चाहेगा तो माउंटेन की वजह से न्यूट्रलाइज कर जाता है। तो वहाँ पे अगर हम बात करें तो हीट बहुत होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, गर्माहट दिन में बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन जो ऊपर की हवाएं हैं और जो हिमालय है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और वहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म होता है। लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म होता है और उधर भी हवाएं मूव करना चाहती हैं, हाई से लो की तरफ जाएंगी। ठीक, तो ये भी एक कंडीशन होती है। अगर हम बात करें तो देयर इज वन मोर कंडीशन, द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम to the north of the Himalaya and the presence of the tropical easterly jet stream over the Indian peninsula during summer। होता क्या है कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो हैं वो हिमालय के नॉर्थ में चलती हैं। जैसे आपको मैंने बताया हिमालय के साउथ में हम हैं, हिमालय के नॉर्थ में चाइना है, तो हिमालय के नॉर्थ में वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलती हैं और हिमालय के साउथ में क्या होता है, ट्रॉपिकल, हिमालय के साउथ में हमारा ट्रॉपिक एरिया है तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलती है। तो हिमालय के नॉर्थ में वेस्ट है चल रही है, हिमालय के साउथ में ईस्ट चल रही है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो दोनों क्या करती हैं, दोनों एक दूसरे से टकराती हैं। दोनों के टकराने के वजह से भी जो पेनिनसुलर पार्ट है या जो हमारा इंडिया का पार्ट है वहाँ पर मॉनसून अच्छा पाया जाता है, मॉनसून वहाँ का भी इफेक्ट पाया जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। कल हम ITCZ के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू एवरीवन।